Well, we are taking up today fire insurance. So in fire insurance, basically, all the general insurance principles are applicable. For example, insurable interest, utmost good faith, proximate cause, and principle of indemnity. This principle of indemnity is applicable with its two corollaries, which are known as subrogation and contribution. That means all the principles of general insurance are applicable to the fire insurance. Now, as on date, you will find these are the fire insurance policies. For residence allowances, you will find Bharat Gृह Raksha. For commercial, Bharat Sukshma Udyam and Bharat Laghu Udyam. And for a sum insured over 50 crore fire insurance, that is standard fire and a special peril policy. So these are the policies applicable today with all the general insurance companies of India on the uniform pattern. Since first three of them are introduced by the IRDA, so no company can change the terms, conditions, wordings and clauses of these policies. So these are implemented and executed from 1st April 2021 by all the general insurance companies in the same manner. Now, as far as subject matter of fire insurance is concerned, you will see major classes of properties are insurable under fire insurance only. Major means where the huge amount is involved. Say for example, buildings, plant and machineries, equipment and accessories, furniture, fixtures, fittings, electrical fittings, goods, maybe raw material, semi-finished material, finished stock, maybe in the open gut warehouses or closed warehouses, and pipelines present inside as well as outside the building, utilities. All these things are subject matter of fire insurance. That means they are insurable under the fire insurance category and any of the commercial policies according to the sum insured. So these are all insurable under fire insurance. Now how the fire insurance works? बोलिए हाँ सुन लीजिए। जैसे कोल है, कोयला या भूसा है या कोई बिल्डिंग मटेरियल है, ये नॉर्मली ओपन में स्टोरेज किए जाते हैं। इनके लिए गोडाउन की जरूरत नहीं पड़ती, वेयर हाउस की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब कोई घी है, टिन है, स्पाइसेस हैं, शुगर है, all these things are stored in the closed warehouses, godowns, closed godowns. So it depends upon the nature of property or nature of item how they can be stored, either in factories or in industries or in shops or anywhere in India. कोल जैसी चीज के लिए कोई गोदाम नहीं लेता, कोयले को रखने के लिए खुले में पड़ा रहता है, स्टॉक बाउंड्री होती है ज़्यादा से ज़्यादा। ईंट पत्थर है, उनके लिए बाउंड्रीज होती है, मार्बल है, ग्रेनाइट है, कितना भी कीमती पत्थर हो लेकिन ओपन में रहेगा। Such properties are stored in open, but the costly properties and the perishable items are kept in the godowns. Okay. So now how the fire insurance works? Any property that could be building, machinery, furniture, equipment,
when it is insured under the fire insurance policy, if at all there is any loss or damage to this by any of the insured parents of the policy, the fire insurance policy comes into the picture and pay the compensation as per the provision of the policy. As long as there is no loss or damage to the property insured under the policy will pay nothing. Policy will pay nothing because this is a general insurance policy, not a life insurance policy where the money will be. ओके ओके ओके, आपके एग्जीक्यूटिव ने भी ज्वाइन किया हुआ है? ओके ओके, ठीक है। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी होती है ना जिनमें कि पूरे साल अगर कोई लॉस और डैमेज नहीं हुआ है तो जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी में उस पॉलिसी पर कुछ भी पे नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह नहीं है कि उसमें मैच्योरिटी पे पे करना पड़ेगा या बोनस पे करना पड़ेगा, नथिंग लाइक दैट। यहाँ तो अगर पॉलिसी में कुछ लॉस और डैमेज हुआ है वो भी इंश्योर्ड पेरेंट से हुआ है, देन ओनली द फायर पॉलिसी विल कम इनटू द पिक्चर, अदरवाइज नॉट। तो अगर ऐसा कोई लॉस और डैमेज पॉलिसी पीरियड में नोटिस किया जाता है तो ही पॉलिसी क्लेम पे करती है। और इस पॉलिसी में देखिए जो IRDA ने इंट्रोड्यूस किए 1 अप्रैल 2021 से, उनमें कुछ चीज़ें चेंज कर दी जो कि मेजर चीज़ें हैं। क्योंकि पहले जो स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेयरिंग पॉलिसी होती थी वो पॉलिसी तो आज भी है, लेकिन उसमें ये चेंजेस नहीं किए गए। जैसे सम इंश्योर्ड निकालने का कोई स्टैंडर्ड पैटर्न, इनबिल्ट एडिशनल कवरेज जोड़ना, इनोवेटिव कवरेज जोड़ना, या उसका कवरेज ही चेंज कर देना, पेरेंट्स नंबर ही चेंज कर देना, ये इन दोनों पॉलिसियों में किए गए हैं जो कि कमर्शियल सेक्शन के लिए एप्लीकेबल है, जिनका नाम है सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा और लघु उद्यम सुरक्षा। अब फायर एक्चुअली है क्या, फायर का मीनिंग क्या है? क्योंकि बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन ये है कि जब हम बोलते हैं फायर इंश्योरेंस इसका मतलब लोग ये समझते हैं कि इसमें सिर्फ आग लगने की रिस्क कवर्ड है और कुछ नहीं, जबकि बिल्कुल ही गलत कंसेप्ट है। हाँ, फायर उसमें एक मेजर पेरिल है। फायर की वजह से बड़े बड़े लॉस होते हैं, सबसे ज़्यादा लॉसेस फायर से ही होते हैं, ये भी पॉसिबल है। लेकिन फायर तो 14 में से एक पेरिल है, बाकी 13 पेरिल और हैं, उनसे लॉस हुआ तो भी फायर पॉलिसी में क्लेम पे हुआ। फायर को इंश्योरेंस की लैंग्वेज में हम ऐसे ट्रीट करते हैं कि एक एक्चुअल इग्निशन होनी चाहिए, लॉ प्रज्वलित होनी चाहिए, जो कि प्योरली एक्सीडेंटल हो, यानी पहले से नहीं हो, अचानक लगी हो, चाहे वो शॉर्ट सर्किटिंग से हो, चाहे आग लगने किसी ने तीली फेंक दी उससे हो, किसी भी रीज़न से हो, और उसमें उस प्रॉपर्टी का नुकसान हो जो कि पहले से सुरक्षित है, पॉलिसी पीरियड में उसमें नुकसान हो गया तो क्लेम पे होगा। अब ये जो फायर है इसकी एक साइंटिफिक डेफिनेशन है कि सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस ऑफ रैपिड ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ए फ्यूल विच प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि किसी भी तरीके का आइटम फ्यूल बन जाता है, यानी कि जो चीज़ जल रही है वो फ्यूल हो गया, और वो जल किस लिए रही है? हीट एंड लाइट्स की वजह से। अब जब तो फिर उसमें क्या क्या चीज़ें आवश्यक हुई? पहली चीज़ कोई भी आइटम जिसको फ्यूल कहेंगे, दूसरी चीज़ ऑक्सीजन लेवल, तीसरा टेम्परेचर। जब तीनों का कॉम्बिनेशन होता तभी आग लगती है, नहीं तो नहीं लगती। जैसे कि गीले कोई आइटम है, भीगा हुआ आइटम है, तो उसमें वो टेम्परेचर आएगा ही नहीं, तो उसमें आग नहीं लग पाएगी। तो जहाँ ये तीनों चीज़ें होंगी वहीं लगेगा। अब वो सब्जेक्ट मैटर जो है जिसमें कि आग लगनी है वो किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे कि सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, वेपर भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है। नॉर्मली लकड़ी की आइटम्स में, फैब्रिक्स में, सिंथेटिक मटेरियल्स में, पैकेजिंग मटेरियल्स में, पेपर्स में, इनमें आग लगती रहती है। और इनसे भी ज़्यादा नुकसान किसमें होता है? फ्लेमेबल लिक्विड्स है, यानी केमिकल्स हैं। नाइट्रोफिनाइल है, अमोनियम नाइट्रेट है, पोटेशियम क्लोरेट है, ये उससे भी ज़्यादा ससेप्टेबल है फायर के लिए, इनमें और भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो फायर का माइनिंग सिर्फ ये नहीं है कि जिसमें से लॉ निकल रही है और आग से जल गया उसी को क्लेम पे किया जाए, बल्कि उसकी वजह से जो आग लगी है और फिर वो आग बुझाने का जो प्रोसेस है उसमें भी अगर कोई लॉस हुआ वो भी पेबल होगा। जैसे मान लिया फायर ब्रिगेड बुला ली, उसने पानी छिड़का, पानी से और लॉस हो गया, वो भी पेबल है।
फायर ब्रिगेड तो अपना काम कर रही है ना फायर में जाने का। फायरमैन है, उसने सामान को इधर उधर हटाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए सामान को इधर उधर किया, उसमें लॉस हो गया, वो भी पेबल है। डैमेज टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग रिमूवल फ्रॉम ए बर्निंग बिल्डिंग, निकाल के बाहर रखना जिससे कि सामान बच जाए, उसमें भी लॉस हो गया तो वो भी पेबल है। कोई दीवार अचानक गिर गई फायर से कमजोर होकर के, वो भी पेबल है। तो ये प्रोसेस का पार्ट बन जाएगा, इसलिए क्लेम पेबल हो जाएगा। अब जब फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी दी जाती है तो अंडरराइटर आपके प्रपोजल को एवेल्युएट करता है और देखता है कि इसमें क्या रिस्क दी जाए, उसको एक्सेप्ट किया जाए नहीं किया जाए, इसकी रेटिंग क्या की जाए, और उसके लिए उसके पास क्या मेथड्स हैं, वो इन चीज़ों को लगा के देखता है। कैसा कंस्ट्रक्शन है, क्या उसकी ऑक्यूपेंसी है, ऑक्यूपेंसी यानी क्या काम हो रहा है उसमें, फैक्ट्री है, दुकान है, कोई स्मॉल इंडस्ट्री है, कोई बड़ी कॉरपोरेट यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, खाली सेल्स होती है, खाली सर्विस दी जाती है, होटल एंड रेस्टोरेंट को सर्विस दी जाती है के लिए। हाइट क्या है, फ्लोर वॉल ओपनिंग क्या है, एक्सपोजर क्या है रिस्क का, लाइटिंग हीटिंग एंड पावर के सिस्टम्स कैसे हैं, सिचुएशन कैसी है प्लेस की, प्रोटेक्शन लेवल है या नहीं, अगर कोई पिछले पहले कोई लॉस हुआ तो उनका टाइम ऑफ लॉस क्या रहा है। ये सारे क्लासिफिकेशन इसलिए हैं कि इन फैक्टर्स पर रिस्क को एसेस किया जाता है, फिर उसके बाद रेटिंग की जाती है। कोई भी प्रूडेंट अंडरराइटर जब तक प्रपोजल को एवेल्युएट नहीं करेगा तब तक उसकी रेटिंग नहीं करेगा। आप जिस प्रपोजल को क्वोट जनरेशन के लिए भेजते हैं उनको इन सब पैरामीटर्स पर टेस्ट किया जाता है, जो उसकी पोजीशन है उसके हिसाब से उसकी रेटिंग दी जाती है। आप अगर ये सोचते हैं कि मार्केट में कंपटीशन चल रहा है, ये कंपनी 60% दे रही है, वो कंपनी 80% दे रही है, वो 90% दे रही है, इस बेसिस पर अगर हम रेटिंग कर दें तो वो तो अंडरराइटिंग हुई नहीं, वो तो रेवड़ी बांटना होगा। उस कंपटीशन में प्रॉपर अंडरराइटिंग हुई नहीं, अंडरराइटिंग तो इन्हीं फैक्टर्स पर होगी। देन व्हाई चेंजेस आर रिक्वायर्ड। पिछली पॉलिसी में काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेशन थे क्योंकि लैंग्वेज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, प्लस कंप्लीट कवरेज नहीं था। जितना पॉलिसी में पैरेलल कवर्ड थे उससे ज़्यादा था एड ऑन कवर्ड थे, प्लस पॉलिसी में मिस सेलिंग हो रही थी। मिस सेलिंग कैसे हो रही थी, दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू। एड ऑन कवरेज का सिस्टम चेंज कर दिया, इसलिए एड ऑन में मर्ज कर दिए और इंश्योरेंस कंपनीज को ये कह दिया कि नए एड ऑन बना लीजिए, वी विल अप्रूव इट। क्योंकि पिछले में तो क्लैरिटी ऑफ कवरेज थी नहीं, अब कवरेज की क्लैरिटी आ गई। एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी कि सम इंश्योर कैसे निकाला जाए। ये इंश्योरेंस के सामने भी, इंश्योरेंस कंपनी के सामने भी बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के माइंड में ये था कि कोई मशीन नहीं उन्होंने मान लिया 1 करोड़ की खरीदी तो उसका बीमा तुरंत 1 करोड़ का करा दो। ये कॉन्सेप्ट सही नहीं था। ये तो उसकी परचेज वैल्यू हुई, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी सेल वैल्यू क्या है, उसकी रीसेल वैल्यू क्या है, उसकी बुक वैल्यू क्या है, उसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू क्या है, और सबसे बड़ी चीज़ उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या है। तो रिप्लेसमेंट वैल्यू या रीस्टेटमेंट वैल्यू को हाईलाइट किया गया, इसलिए सम इंश्योर्ड का फैक्टर डिसाइड किया गया। ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। पॉलिसी ये दोनों सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम ऑलमोस्ट सेम है, 2-3 पॉइंट्स का डिफरेंशिएशन है, जिसमें सबसे बड़ा ये है कि ये 50 करोड़ तक के लिए दी जा सकती है, उससे ऊपर नहीं। उससे ऊपर के लिए आदमी स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी दी जाएगी। एड ऑन कवर पुराने मर्ज हो गए, लेकिन नए एड ऑन कवर बनाए जा सकते हैं, पुराने के लिए कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं लगेगा। 1 अप्रैल 2021 से पॉलिसी लागू हो चुकी हैं, चाहे नया केस हो या रोल ओवर केस हो या रिन्यूअल हो। अब सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज यही पॉलिसी इशू करेगी। इंश्योरेंस कंपनियां एक और काम करती हैं, डिफरेंट वर्टिकल्स के लिए उनके अलग अलग सेगमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके लिए पैकेज पॉलिसी तैयार कर देती हैं
क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये होती है कि हम इसके बजाय कि हम 10 पॉलिसियाँ लें अलग अलग तरीके की, हमारे लिए एक पॉलिसी बना दीजिए, उसमें हम 12 तरीके की, 14 तरीके की, 20 तरीके की अपनी पॉलिसियों को मिला दीजिए, उनको सेक्शन बना दीजिए। जो हमसे रिलेटेड होगा उसको हम ले लेंगे, जो हमें सेलेक्ट करना होगा उसको हम ले लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी उनको दी जाए और ये दे दी गई। तो पॉइंट ये है कि सभी कंपनियां क्योंकि पैकेज पॉलिसी डिजाइन करती हैं, हमने भी कर रखी बस। बिजनेस प्रोटेक्टर पॉलिसी है, श्री शॉपकीपर पॉलिसी है, श्री ऑफिस केयर पॉलिसी है, श्री होटल एंड रेस्टोरेंट है, श्री एजुकेशन शील्ड। तो पैकेज पॉलिसी के 2 रूल होते हैं मेनली। पहला ये कौन से सेक्शन मैंडेटरी कंपल्सरी जो कि कस्टमर को लेने ही लेने हैं। दूसरा ये मिनिमम सेक्शन कितने लेने हैं। तो दोनों हर पैकेज पॉलिसी में हर जनरल इंश्योरेंस कंपनी की में लागू होते हैं। आप नॉर्मली देखेंगे किसी भी पैकेज पॉलिसी में पहला सेक्शन फायर इंश्योरेंस का कंपल्सरी होता है, दूसरा उसमें मिनिमम 2 सेक्शन या 3 सेक्शन लेने जरूरी होते हैं। तो कस्टमर पहले ये दोनों रिक्वायरमेंट पूरी करता है, उसके बाद अपनी चॉइस की या अपनी रिक्वायरमेंट की या अपनी अफोर्डेबिलिटी की हिसाब से सेक्शन सेलेक्ट करता है। अब सारी की सारी पैकेज पॉलिसीज में पहला सेक्शन फायर का कंपलसरी है, यानी कि फायर तो आपको लेना ही लेना है। तो जब आप फायर ले रहे हैं सेक्शन, तो उसमें सवाल ये उठता है कि कौन सी पॉलिसी लागू हुई, क्योंकि यहाँ कस्टमर अपने हिसाब से चुनने की पोजीशन में नहीं है। कौन सी पॉलिसी लागू होगी ये इंश्योरेंस कंपनी भी डिसाइड नहीं करती, ये ऑलरेडी IRDA ने डिसाइड कर दिया है कि सम इंश्योर्ड 5 करोड़ तक होगा तो सूक्ष्म उद्यम पॉलिसी लागू होगी, 5 करोड़ से ऊपर और 50 करोड़ से कम है तो लघु उद्यम पॉलिसी लागू होगी, 50 करोड़ से ऊपर है तो स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी लागू होगी। ये बड़ा सिंप्लीफाइड है। तो ये पैकेज पॉलिसी का तरीका हो गया। ये दोनों क्लासिफिकेशन ये बताते हैं आपको को कौन सी पॉलिसी कितने सम इंश्योर्ड तक के लिए दी जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि ये सम इंश्योर्ड इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ रिस्क एट वन लोकेशन। अगर मेरी जयपुर में 2 फैक्ट्रियाँ सीमेंट बनाने की, मैं ओनर हूँ, दोनों मेरी अलग अलग लोकेशन पर हैं, तो मैं दोनों को एक ही पॉलिसी में इंश्योर नहीं कर सकता, मुझे दोनों के लिए अलग अलग पॉलिसी लेनी पड़ेगी। सम इंश्योर्ड इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ रिस्क एट वन लोकेशन। हाँ, मेरे गोडाउन अलग अलग है तो मैं एक ही पॉलिसी में कर सकता हूँ, लेकिन दोनों यूनिट ही अलग अलग है तो नहीं कर सकता। तो फायर पॉलिसी में जो जो चीज़ शामिल होगी ऑटोमेटिकली या कस्टमर के ऑप्शन पर, उनमें ये चीज़ें हैं। जैसे मान लिया कोई नॉन इंडस्ट्रियल यूनिट है, नॉन इंडस्ट्रियल का मतलब होता है जहाँ कोई प्रोडक्शन नहीं होता, आउटपुट नहीं होता, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, केवल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। जैसे होटल है, ऑफिस है, शॉप है, हॉस्पिटल है। हालांकि सर्विसेज अलग अलग तरीके की हैं। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसको कहते हैं जहाँ पर कोई चीज़ बनती हो, मैन्युफैक्चर होती हो, प्रोडक्शन होता है। स्टोरेज के लिए गोडाउन्स होते हैं, ओपन भी होते हैं, क्लोज भी होते हैं। यूटिलिटीज और टैंक्स भी होती हैं, बड़ी बड़ी और बहुत कॉस्टली। इन सब का बीमा फायर पॉलिसी में हो जाएगा। अब इन फायर पॉलिसी में मेजर चेंजेस जो किए गए वो ये हैं कि 12 से बढ़ा के 14 पैरल कवर कर दिए गए। पैरल्स डिलीट करना बैन कर दिया है, कोई जनरल इंश्योरेंस कंपनी पैरल डिलीट नहीं करेगी। उसके पीछे लॉजिक ये है कि पैरल डिलीट करने से मिस सेलिंग बढ़ती है। मिस सेलिंग इसलिए बढ़ती है कि जिस पैरल को आप पॉलिसी में से डिलीट कर रहे हैं उसके बारे में कस्टमर को ABCD कुछ नहीं पता। जब तक उसे ये नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है, किस काम आता है, तो वो आपको समझाएगा क्या, वो अपना ऑप्शन भी कैसे एक्सरसाइज कर पाएगा। इंश्योरेंस कंपनी अपनी मर्जी से अगर कर रही है तो उसका नुकसान घाटा उसी को होगा कस्टमर को, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो अपने फेवर में डिसीजन लेगी। तो कोई पैरल आप
डिलीट नहीं होगा फ्रॉम डे वन। पॉलिसी में 14 पैरल हैं तो 14 पैरल लास्ट डे तक कंटिन्यू करेंगे। मिस्टर राजकुमार धीरज कुमार है बोलते हैं, बोलिए। यूटिलिटी टैक्स क्या होता है कि फैक्ट्री में अगर कभी आपने विजिट किया हो तो आपने देखा होगा पाइपलाइन है, यूटिलिटीज़ के लिए एक बड़े बड़े स्टेयर केसेस हैं, टैंक्स बनाए हुए हैं, स्टोरेज के लिए अलग सी चीज़ें बनाई हुई हैं। तो ये जो उनके फैक्ट्री के कंपोनेंट हैं जो कि होते ही होते हैं, अब उनके लिए कोई अलग से पॉलिसी तो बनेगी नहीं, वो भी फायर की पॉलिसी में कवर्ड होंगे। तो इस तरीके के जो भी आइटम्स हैं वो सब इसी पॉलिसी में आ जाते हैं। बिल्डिंग इसी में कवर हो गई, मशीनरी इसी में कवर हो गई, फर्नीचर फिक्सर इसी में कवर हो गया, माल का स्टोरेज इसी में कवर हो गया, इक्विपमेंट इसी में कवर हो गई। हर पॉलिसी का कवरेज बहुत बड़ा होता है। अब आप कहेंगे कि मेरी एक इंडस्ट्री है 30 करोड़ रुपए की, मैं उसका बीमा करा रहा हूँ, तो आप मेरे पास आए तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आधी चीज़ें मुझसे करा लो, आधी चीज़ें दूसरे से करा लो। और सब इंश्योर तक जितनी पॉलिसी में दे सकता हूँ उसको एक ही पॉलिसी में कवर हो जाएगी। आपकी बिल्डिंग भी कवर हो जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी भी कवर हो जाएगी, फर्नीचर फिक्सर भी कवर हो जाएगा, स्टोरेज भी कवर हो जाएगा। आपने बड़ा अमाउंट डिजाइनिंग पे, प्लांट के इरेक्शन पे खर्च किया है वो भी कवर हो जाएगा। आपने टैंक्स और स्टोरेज बनवा रखे हैं वो भी कवर हो जाएंगे, वो सब कवर हो जाएगा। लाइक दैट। अब है पॉलिसी में कंपल्सरी एक्सेस। सम इंश्योर तो डिसाइड करेगा कि पॉलिसी कौन सी दी जाए। जैसे सूक्ष्म उद्यम 5 करोड़ तक दी जाएगी, 5 से ऊपर 50 करोड़ तक के लिए लघु उद्यम दी जाएगी। लेकिन पॉलिसी का जो कंपल्सरी एक्सेस है वो फिक्स रहेगा। सूक्ष्म उद्यम पॉलिसी में 5,000 रुपये ऑन ईच क्लेम और लघु उद्यम में 5% ऑफ ईच क्लेम सब्जेक्ट टू मिनिमम 10,000 रुपीज। एक कटेगा ही कटेगा हर क्लेम पर। एक पॉलिसी में एक भी क्लेम नहीं आता, वेल एंड गुड। एक आ जाता है, ये परसेंटेज क्लेम कट जाएगा। एक ही पॉलिसी में 3 क्लेम आ जाते हैं, तीनों बार कट जाएगा। अगर लॉस टेररिज्म रिस्क होता है तो कंपल्सरी एक्सेस डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि टेररिज्म रिस्क एक ऐसी रिस्क है जिसको कि टेररिज्म पूल डायरेक्टली डील करता है। उनकी लिमिट भी अलग है और उनके क्लेम सेटलमेंट का भी प्रोसेस अलग है। मिनिमम प्रीमियम पॉलिसी का डिसाइडेड है जो कि 500 प्लस GST है सूक्ष्म उद्यम के केस में, और लघु उद्यम के केस में 1000 प्लस GST है। बिल्कुल सारी कंपनियों की पॉलिसी एक सी है, उसमें कोई चेंज नहीं, और ये एज इट इज लागू होगी। वो अलग है, उसका हमने नाम नहीं लिया। वो पॉलिसी अलग है, उसमें कवरेज भी अलग है, उसकी सब चीज़ अलग है। अब पॉलिसी के रिस्क कवरेज पर आते हैं कि क्या क्या पैरल्स इसमें कवर्ड है। 14 पैरल कवर्ड है, लेकिन 14 में से कई चीज़ों की डेफिनेशन चेंज कर दी गई है। जैसे फायर की पॉलिसी को बढ़ा दिया गया है, जिसमें कि रिस्क कवरेज का फ़ायदा इंश्योर्ड को मिलेगा। कैसे मिलेगा कि ओन फर्मेंटेशन, नेचुरल हीटिंग और स्पॉन्टेनियस कंबशन को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, तो इनके लिए कोई अलग से पैसा नहीं देना पड़ेगा। जबकि स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पैरल पॉलिसी में ये एड ऑन कवर है, इनके लिए एक्स्ट्रा पैसा लगता है। इन दोनों पॉलिसियों में सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम में एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा और इनका ऑटोमेटिक कवरेज मिल जाएगा। ऐसे ही बुश फायर की डेफिनेशन को बढ़ा करके उसमें फॉरेस्ट फायर और जंगल फायर शामिल कर लिया गया है। इनका भी कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा और इसका भी कवरेज शामिल हो गया। इसके अलावा जो 2 पैरल या 3 पैरल बढ़ाए गए वो हैं टेररिज्म, अर्थक्वेक और थैफ्ट। इसका ये एक का गड़बड़ इसलिए हो रहा है कि एयरक्राफ्ट डैमेज नाम का जो सेपरेट पॉलिसी पैरल था उसको तो इम्पैक्ट डैमेज में मर्ज कर दिया गया, यानी एक पैरल तो कम हो गया। 3 पैरल बढ़ाए, टेररिज्म, अर्थक्वेक और थेफ्ट, इसलिए संख्या 12 से बढ़कर 14 हो गई। अब ये जो थेफ्ट है इसका लिमिटेड यूज रखा गया।
लिमिटेड इन द सेंस कि सिर्फ चोरी होगी तो कवर नहीं, अगर चोरी किसी और कारण के साथ हो रही है तो फिर कवर हो जाएगी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मान लिया फ्लड से लॉस हो गया, दीवार टूट गई, दीवार ही गिर गई एक पूरी, तो उसके बाद कुछ लोगों ने सामान चुराना शुरू कर दिया, ले गए एक एक करके उठा के ले गए, आसपास के पैदल ले गए, चौथे दिन ले गए, छठे दिन ले गए, 7 दिन तक जितनी भी चोरी हुई वो सब डिस्कवर हो जाएगी। लेकिन सिर्फ खिड़की तोड़ करके सामान ले गए या चोरी करके सामान ले गए वो नहीं कवर होगा, क्योंकि थेफ्ट रिस्क एक्सक्लूसिवली कवर्ड नहीं है। दिस इज नॉट कवर्ड इन आइसोलेशन, दिस इज इफ इट इज फॉलोड बाय एनी अदर पेरिल देन इट इज कवर्ड। तो इस तरीके से पॉलिसी में 14 पेरिल कवर है। अब 14 पेरिल के अलावा इनमें से किसी भी पेरिल को इंश्योर्ड अगर डिलीट कराना चाहे या इंश्योरेंस कंपनी डिलीट कराना चाहे तो नहीं करा सकते, क्योंकि स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी में आज भी 2 सेट ऑफ पेरिल को एक्सक्लूड कराया जा सकता है, उनका प्रीमियम भी कम कराया जा सकता है, ये प्रोविजन आज भी उसमें, और ये है RSMD एंड STFI। अब आप में से ज़्यादातर लोग तो उनके फुल फॉर्म भी नहीं जानते, किसी से पूछा जाए STFI का फुल फॉर्म क्या है तो बता भी नहीं पाते। STFI एक ऐसा पेरिल है जिसमें एक शॉर्ट ओके, this is a dispute in your team only, because all other teams want in English only, total English, but here most of the executives are from Hindi medium. No worry, I'll combine, club them. So what about most of the people are not aware कि STFI है क्या, RSMD है क्या. In that case, neither on the request of the insured nor on the request of the insurance company, these perils cannot be deleted. From day 1 to the expiry date, all the 14 perils will continue. Now, if you ask what is RSMD, RSMD is a set of perils which is having 3 different risks. क्या क्या शामिल है RSMD में? रॉयल्टी स्टैक एंड मैलिशियस डैमेज। STFI में क्या क्या शामिल है? स्टॉर्म, टेम्पेस्ट, फ्लड, इनंडेशन, साइक्लोन, टाइफून, हरिकेन. Most of the losses are taking place because of these reasons only. But if you are excluding, that means you are depriving the insured from taking the valid claim. अगर आपने ये एक्सक्लूड कर दिया तो इंश्योर का राइट ही खत्म हो गया क्लेम करने का. So no company can exclude them now. Now see the very interesting thing. These are 15 add-on covers which are available in standard fire and special peril policy. 15. While total perils insured are only 12. So what the IRDA did, all these 15 perils were merged into the new Sukshma Udyam and Laghu Udyam policies without any additional premium, including terrorism, forest fire, impact damage, spontaneous combustion. All these are merged. Insurance companies were asked to file new add-on covers, and they have got new add-on covers. We also have got 8 new add-on covers. Now, these are the risks which are included already in the policy without any exception. If there is any loss, insured has to pay to architect, surveyor, consulting engineer. That payment is already covered. That is 3% of the claim amount, but now the limit has been divided to 5%. बहुत पुरानी पॉलिसी है, अब इसकी रेट लिमिट बढ़ा दी. Then removal of debris. If the property loss is there, मलबे को साफ करने में पैसा खर्च होता है.
To remove the debris, you have to incur lakhs of rupees extra. That limit has been increased from 1% to 2%. Other add-on covers which are included without any extra cost are additions, alterations or extensions, temporary removal of stock, cover for specific contents, startup expenses, cost compared by mutual regulations, stocks on flatter basis, preloaded software, stock held in trust. They are already included. In short, don't need to pay anything extra. The only thing is, this stock on flutter basis is free in Sukshmantam only, not in Laguttam. Stocks on flutter basis means a floater cover is given. Floater cover is covering the risk of stocks at multiple locations. क्या मतलब? मेरी फैक्ट्री जयपुर में है, लेकिन मैं ऑल इंडिया में माल बेचता हूँ. मेरे गोडाउन्स बड़े बड़े सेंटर्स पर रहे हैं. 5 शहर में है. मैं 500 को अपनी पॉलिसी में कवर कराना चाहता हूँ. हो जाए. अंडर द सेम पॉलिसी, अंडर द सेम सम इंश्योर्ड, I have to give the addresses and the value of stock at the different locations. That will be insured under the same policy. That is called floater cover. So this floater cover is free in Sukshmantam Suraksha without any extra cost. But in Laguttam Suraksha,